أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم لک الحمد و شکر اللہم لک الحمد و شکر اللہ تعالیٰ ایسا موقع عطا فرمائے یا رب ہر ٹائم اس کی کتاب پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے اس میں غور و فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ موقع عطا فرمائے اور الحمدللہ رب العالمین ہم دیکھیں گے سحری کے بارے میں باب فضل سحور و تاخیر ما لم یحشر طلوع الفجر سحری کھانے کی اور اس میں تاخیر کرنے کی فضیلت بشرط طلوع فجر کا اندیشہ نہ ہو یہ کیا ہے سحری کون سے ٹائم میں کھانا وہی ہے ہم یہ حدیث دیکھیں گے ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخروا فإن فی سحوری برکات یعنی متقی علیہ یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے اس لیے ضرور سحری اور ٹائم میں اٹھ کر کھانا چاہیے اس حدیث کا فائدہ کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھانا مسنون ہے یہ طریقہ مسنون ہے سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھانا یہ طریقہ مسنون طریقہ ہے چاہے تھوڑا ہی کھا لے یعنی چاہے تھوڑا زیادہ نہیں کھائے تو بھی تھوڑا ہی وہ ٹائم میں کھانا چاہیے لیکن اس کھانے میں برکت ہے اس ٹائم کھانے میں برکت ہے سحری میں اس وقت کھانے پینے سے سارا بدن اس کی قوت برقرار رہے گی یعنی اس وقت کھانے سے جسم کو قوت اور اچھا اسے مضبوط رہے گی انشاءاللہ وہ ٹائم میں سحری کرنا اس کے برعکس جو شخص رات کو ہی کھا پی کر سو جائے تاکہ سحری کے لیے اٹھنا نہ پڑے یا سحری بہت جلدی کھا لے اس کے آخر وقت میں نہ کھائے تو اسے جلدی ہی بھوک پیاس ستانے لگے گی کیا ہے اب تھوڑے جنے کیا کرتے ہیں پہلے ہی کہا کو سو جانا پھر بھی اٹھنا نہ پڑے پھر بھی ایسا ہے کہ پہلے اول وقت میں پہلے کھا لینا پھر اٹھنا نہیں بعد میں ہم اٹھ نہیں سکتے اسی طرح سوز کو کھانے والوں کے لیے انہوں کے لیے بھوک پیاس ستانے کی اندیشہ ہے کیونکہ وہ پہلے وقت میں کھائے وہ وقت میں نہیں کھائے اس لیے یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ سحری کے وقت میں کھانا برکت بھی ہے اور اس وقت کھانے سے انسان مضبوط بھی رہ سکتا ہے اسے بھوک پیاس نہیں ستائے گی کیونکہ ان دونوں صورتوں میں بھوکا پیاسا رہنے کا بیڑا وفقا پڑ جائے گا یعنی ایسا پہلے صورت میں دو صورتوں میں جلدی جلدی کھا لینے سے کیا ہوتا اسے بھوکا پیاسا رہنے کا تھوڑا اسے یہ ہوا تھا پیاس اور بھوک کی شدت آ جاتی ہے ایسا ہوتا اس لیے ایسا نہیں کرنا جس سے یقیناً روزے دار کو تکلیف ہوتی ہے اس سے کیا ہوتی جب ہمارا بھوک پیاس سے ستانے لگے تو بھوک پیاس ستانے لگے تو کیا ہوتی انسان تھوڑا ذکر بھی سیدھا نہیں کر سکتا اور نماز بھی سیدھا نہیں پڑھ سکتا اور قرآن اور نیک کام بھی اور اپنا نوکری بھی سیدھا نہیں کر سکتا اسی لیے سحری کے ٹائم میں سحری کھانا اسے انسان کو مضبوط رکھتی ہے اور ایک کیا ہے
वो सुन्नत का तरीका भी है, ये मसनून भी है। इसीलिए हमें जो वक़्त बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे वक़्तों में सहरी करना अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के लिए बहुत अच्छा है। इस्लाम की तालीमात में किसी तरह इंसान की कमज़ोरियों का लिहाज़ रखते हुए उन्हीं मुनासिब हिदायत दी गई है। तो एक इस्लाम के तालीमात के तो इसका मतलब क्या है? यानी इस्लाम के तालीमात में देखो कैसे-कैसे हमारे आसान है इस्लाम का तरीका। इसका इस्लाम का तरीका जो है वो तरीक़ों हमें चले, इस्लाम आसान है। और ऐसा नहीं सकता हमें खुद ही हमें गढ़ ले, हमें ज़्यादा से इस्लाम में ज़्यादा नए बातें गढ़ना, ऐसा करना यानी मुश्किल हो जाता उनके लिए, जो भी ऐसा करते हैं। यानी इस्लाम जैसा है वैसा हमें चलेंगे, इस्लाम आसान है, हमारे लिए आसान है अल्हम्दुलिल्लाह उसको चलने और काम करने के लिए भी आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें तो आसानी हाँ, आसान है। बस ये बिदअत करने वाले, ऐसा करने वाले, वो अपने ऊपर घड़ लेना, अपने ऊपर वज़न भार लेना, ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए, वही तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को बताए, हमें उस पर अमल करना। और एक हदीस से हमें पता चलता है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई। फिर हम नमाज़ के लिए उठ खड़े हुए। उनमें से उनमें से पूछे सॉरी उनसे पूछा गया कि सहरी खत्म होने और नमाज के दरमियान कितना वक़्फ़ा था? उन्होंने फरमाया कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कौन? ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा और भी सहाबा शायद उनके साथ न रहे होंगे और जब सहरी कर कर उन्होंने नमाज़ के लिए मस्जिद में आ गई, यानी मस्जिद में उठ नमाज़ के लिए खड़े हो गई, उनमें से कोई ना कोई उनको उनको सवाल किया कि मालूम करना चाहती हैं उन्हों सहरी का वक़्त कितना है, कितने देर खत्म होता है, इसी तरह मालूम करना चाहती हैं। उनसे एक ने सवाल किए, कितना फ़ासला था, यानी कितना वक़्फ़ा था? इस न ब सहरी और नमाज के लिए कितना दरमियान हमें सहरी कर सकती हैं? ऐसा सवाल किए। तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाए 50 आयतें पढ़ने की मिक़दार हो। कितनी मिक़दार हो? 50 आयतें, कुरान की आयतें 50 आयतें पढ़ने की वक़्त मिक़दार हो। सहरी से और सुबह की नमाज तक सहरी हमें कर सकती वो टाइम से उठकर और वो टाइम तक सुबह की नमाज तक हमें सहरी कर सकती वो वक़्त में सहरी करना ये सुन्नत है और मसनून है। और एक वही हदीस से हमें क्या बात पता चलता है? इससे मालूम होता है कि सहरी बिल्कुल आखिरी वक़्त में खाया जाए। क्या कहे क्या क्या कहते हैं यहाँ? सहरी बिल्कुल आखिरी वक़्त में खाया जाए, यही सुन्नत का तरीका है। यही क्या है? सुन्नत का तरीका है। ताहम सुबह सादिक से पहले-पहले खा ली जाए और ये ये वक़्फ़ा बे बेक़दर 50 आयत अंदाज़े अंदाज़े 10 मिनट यानी 10 मिनट 50 आयतें पढ़ने का कितना अंदाज़ है उसका 10 मिनट शायद। उससे उस तक ना 10 मिनट का फ़ासले में हमें कर सकते हैं। और एक हदीस से ये बात भी मालूम पड़ता है, क्या हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मौज़न थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी के कितने मौज़न थे पहले? 2 मौज़न थे। एक हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरे हज़रत इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हा। इन दोनों भी मौज़न थे। कहाँ? मस्जिद नबवी का। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए बिलाल रदियल्लाहु अन्हा रात को अज़ान देते हैं। रात को के तो क्या तहज्जुद की नमाज को बिलाल रदियल्लाहु अन्हा अज़ान देते थे। जब जब तक इब्ने मक्तूम रदियल्लाहु अन्हा अज़ान ना देते, उस वक़्त तक तुम खाओ-पियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को और सबके लिए क्या दिए, जब तक हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा अज़ान देती तहज्जुद की अज़ान हो, उन्हें अज़ान देती खाना-पीना शुरू करो, जब तक कि मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें अज़ान देती, जब तक खाते-पीते रहो, वो दरमियान खाते-पीते रहो।
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने मजीद फरमाए, यानी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा उसमें मजीद फरमाए, यानी डिटेल से हमको अभी और भी बताए क्या है। फरमाए इन दोनों की इन दोनों की अजानों के दरमियान इतना ही वफ़्क़ा होता था। कितना ही वफ़्क़ा होता था। ये बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हा अज़ान देकर उतरते और ये इब्ने उम्म मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हा अज़ान देने देने के लिए चढ़ते। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इसका हदीस से हमें फ़ायदा क्या मालूम होता है और इसका डिटेल हमें क्या मालूम होता है, वो देखेंगे इंशाअल्लाह। जब बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हा उतरते थे और इब्ने उम्म मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हा ये चढ़ते थे और उससे हमें थोड़ा वाज़े से देखेंगे। इस हदीस का फ़ायदा इससे ये मालूम होता है कि अहद रिसालत में सुबह के वक़्त 2 मौज़न होते थे और दोनों अज़ान होती थी। 2 मौज़न होते थे और 2 अज़ान होती थी। पहले अज़ान का मकसद ये था कि रोज़ेदार अगर सहरी खा रहा हो तो वो मुतनब्बे हो जाए। अगर जब इससे इससे क्या मालूम होता, पहले अज़ान देने टाइम को जब वो सहरी करता है वो मुतनब्बे हो सकता है, यानी टाइम है मैं खा सकता हूँ ऐसा। कि सहरी का वक़्त ख़त्म हो चला है, यानी उसे मालूम होना चाहिए कि सहरी का वक़्त भी ख़त्म हो चला है, इसीलिए मुतनब्बे होना चाहिए। और अब नमाज की तैयारी करनी चाहिए। अब सहरी का खत्म होने के बाद में क्या होना है, नमाजी की भी तैयारी करना चाहिए कर कर उनको मालूम हो जाता। और इस और उसके बाद और उसके म, उस, उसके फौरन बाद ही दूसरा अजान दूसरे मौजन के जरिए से होती है। दूसरे मौजन के तो और एक मौजन पहले कौन अजान देती है, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देती हैं, क्योंकि सहरी कहने वालों के लिए वो अजान मालूम हुआ थी कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु देती है, हमें सहरी करना चाहिए और सहरी खत्म कर कर हमें नमाज की तरफ जाना चाहिए। जो इस बात का ऐलान था कि खाने पीने की गुंजाइश खत्म हो गई है हो गई है। अब नमाज पढ़ो। ये मा ये मामूल ये मामूल सिर्फ रमजान में ही नहीं ये मामूल सिर्फ रमजान में ही नहीं था। हदीस के अल्फाज से मालूम होता है कि ये मुस्तकबल मामूल मामूल था ये मुस्तकबल मामूल था कि ये बस सिर्फ रमजान में नहीं, ये हर हमेशा ये मामूल था। ये दोनों अजान अब भी मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम खाने काबा में जारी जारी ही। हमें भी इसे सुन्नत को एहतमाम करना चाहिए। दोनों अजान के दरमियान वक्फा वक्फे के बारे में उलमा ने कहा। क्या कहा, दोनों अजान के दरमियान कितना वक्फा था कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु अजान देने के बाद दुआ वगैरह वगैरह में मसरूफ हो जाते। यानी जहां अजान देने के लिए बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु चढ़ती उधर उधर जाकर अजान के बाद में उन दुआ वगैरह में मशगूल होती, यानी दुआ और इस्तगफार ऐसे में दुआ वगैरह का तो पूरे आ जाती और जो भी इस्तगफार है, तस्बीह है, जो भी है उसमें आ जाती, मसरूफ हो जाती मसरूफ हो जाते और तुलू फजर का इंतजार करते। वही होकर उन्हें क्या करते, तुलू फजर कभी तक न उसका ये हो जाता, वो वक़्त होता, हाँ रुको इंतजार करते भी, अल्लाह से दुआ और इस्तगफार करते भी, वही इंतजार करते। जब तुलू फजर का वक़्त करीब हो जाता है तो नीचे उतर आते और नीचे उतर आते का मतलब क्या है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान मस्जिद में दिए तो पूरे इलाके को सुना जाएगा और पूरा गाँव को सुनाएगा। पहले ऐसा नहीं, क्योंकि पहले ऐसे आवाज़ नहीं, इसीलिए शायद मस्जिद पर चढ़ के देते होंगे। वही हाँ, इंतज़ार करते रहे होंगे। हाँ, ज़िक्र वगैरह भी करते रहेंगे और इस्तगफार भी बहुत ज़्यादा करते रहेंगे। इसीलिए वहाँ से उतर कर वो वक़्त देखकर, जब तुलू का वक़्त देखकर वो नीचे को उतरते होंगे। देखो हमें कितना इससे वाज़े से पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे उतरते और इब्ने उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हा को इत्ला करते, वो वज़ू वग़ैरह करते। जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा जब उतरती उधर से आकर क्या किसे इत्ला देती? उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हा को इत्ला देती, क्योंकि तुम्हारा वक़्त अब अज़ान का है,
اسی طرح تمہارا وقت ہے، اب تمہیں اذان دینے کی شروع کرو. اسی طرح جب وہ کیا کرتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے اور اذان دینے کے لیے چڑھنے کی چڑھتے اور طلوع فجر کے آغاز میں اذان دیتے. اس سے کیا اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، اسی لیے اب انہیں کوئی معلوم نہیں ہوتا تھا وقت کبھی اذان دینا. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہیں کی اذان ختم ہوا تھی، وہ ذکر و استغفار میں مشغول ہونے کے بعد جب طلوع فجر کبھی ہوتا انتظار بھی کرتے، وہ وقت دیکھ کر ادھر سے اتر کر آ پھر دوسرے موزن کو اشارہ کرتے کہ اب تمہارا موقع ہے، تمہارا وقت آ گیا، اب تمہیں اذان دینے کی کوشش کرو. جب انہوں کیا کرتے، جب وہ وضو وغیرہ کر انہوں وہ چڑھ کے جا کر وہاں کھڑے کرے تو جب وہ اذان دیتے کیونکہ وہ نابینا ہے، اسے ان کے لیے کوئی بولنا چاہیے یہ فلان ٹائم ہے اذان دینے کا، اے ٹائم میں تمہیں دو اور ادھر دو، ایسا ان کو نابینا ہے نا، ان کو نہیں دکھتا، اسی لیے ان کو آگے بڑھاتے تھے. ہمارے یہ بات سے کیا پتا چلتا ہے، یعنی سحری کے وقت ہمیں نماز ہو اور ذکر ہو استغفار ہو کرنے سے کیا ہوتا ہے، صرف رمضان میں ہی نہیں، ہر رات کے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے اور آ کر فرماتا ہے کوئی ہے میرے سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، اور کوئی ہے مجھے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مجھے راز جو بھی اللہ سے طلب کرنے کی چیزیں جو بھی ہے میں اسے دوں، اور جو بھی ہے مجھے معافی مانگنے والا اسے معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ ایسا اعلان کرتا. وہ ٹائم میں ہمیں کیا کرنا، سحری کے وقت زیادہ سے زیادہ استغفار ہمیں پڑھنا چاہیے. استغفار بہت پڑھنے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی جو بھی مشکل ہے، پریشان ہے، اور میں ایک ایک کر کے واضح کرتی ہوں. اور بارش نہیں تو بھی بارش ہو سکتی ہے، اور کسی کا جنہیں میں برکت نہیں ان کو بھی برکت اللہ تعالیٰ نازل کرتا، اور کسی کے یہاں اولاد نہیں ان کو اولاد عطا کرتا، اور کسی کے یہاں شادی شدہ لڑکیاں ہی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھے سے اچھے جوڑے عطا فرماتا. یعنی ہر ایک چیز کو یہ بہترین نسخہ ہے. استغفار زیادہ کرنے سے ہر معاملے کو یہ آسان ہو جاتا. اس لیے جب ہم اپنے گناہ معاف نہیں ہوتے، ہمارا دعا اللہ تک کیسا جاتا ہے. اس لیے زیادہ استغفار کرنا، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا اللہ سے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جب ہمارا دعا سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والے سے ابھی مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں کر پہلا آسمان پر آ کر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ جو کچھ چاہیے تمہیں مانگو مجھ سے میں دیتا ہوں کر کے. الحمدللہ اللہ اتنا دینے ٹائم پر ہمیں دوسروں کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرنا. اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہیں کرنا، کیونکہ جو بھی اب سورہ فاتحہ میں کیا ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اسی طرح ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی اس کی ہی عبادت کرنا اور اسے سے مانگنا، اس کے ساتھ دوسروں کو شرک نہیں کرنا. الحمدللہ یہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے الحمدللہ اللہ ہر رات بھی آتا ہے. پھر بھی رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ابھی یہ کرتے ہیں، کیونکہ پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے سے سنت کا ثواب کتنے درجے ہے، اسے بڑا چڑھا کر فرض کر نماز کے درجے پر رکھا رمضان کے مہینے میں. اسی لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، تسبیح پڑھو، اور قرآن میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن اللہ کی کتاب یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرو. الحمدللہ. نمازیں سنتیں وغیرہ مت چھوڑو. اس میں دیکھو حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اس سے ایک اور بات بھی میں بتانا چاہتی ہوں. وہ کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ہونے کے بعد میں بیٹھے صحابہ سے بات کرتے تھے، آپ بلال رضی اللہ عنہ سے سوال کرے، اے بلال رضی اللہ عنہ، تم اسلام قبول کرنے کے بعد کون سا ایسا اپنے پسند سے کام عمل کرتے ہو کہ نیک عمل کون سا عمل کرتے ہو، کیونکہ جنت میں میرے سے آگے میں تمہارے کو دیکھا کیا عمل کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے کسے،
हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने बोले, मैं ऐसा खुसूसी कोसा भी काम नहीं कर रहा, फिर मेरे नजदीक इतना भी खुसूसी कोसा काम भी नहीं कर रहा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं नमाज के लिए वजू बनाता हूँ, मैं जितनी मेरी मुकद्दर में अल्लाह ताला नमाजें लिखा, वो नमाज मैं पढ़ता रहता हूँ और जिक्र व इस्तगफार मैं करता रहता हूँ, क्योंकि जिक्र व इस्तगफार करने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर रहमत के दरवाजे, यानी अल्लाह के बरकत के दरवाजे, रहमत के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता है बंदे पर। अल्हम्दुलिल्लाह उसे तंगी ऐसे कुछ भी उस पर ये नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वादा है कि मुझे पूछते जाओ, मुझे मांगते मांगते जाओ, मैं देने के लिए हाजिर हूँ। और जो अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उसके लिए नाराज होता। इसीलिए हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के साथ किसी को भी शिरिक नहीं करना चाहिए। इसमें ऐसे-ऐसे बातें क्या पता चली, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वक़्त यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वो बोले सहरी और खाने के लिए कितना फ़ासला, यानी 10 मिनट ऐसा भी हो सकता, क्योंकि वो टाइम में खाने से जिस्म को क़ुव्वत भी मिलती और इंसान भी मज़बूत रहते और उसे भूख-प्यास नहीं सताती, वो भी हमें पता चला। और सबसे क्या तहज्जुद की नमाज़ से और सुबह की नमाज़ तक उन कितना वक़्त रहता, वो वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते रहें, ज़िक्र व इस्तग़फ़ार करते रही। ज़िक्र वग़ैरह और इस्तग़फ़ार वो दुआ में मसरूफ़ होते थे। मसरूफ़ होने का मतलब क्या है? अपने आप को भूल जाना। अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को भूल जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला वैसे लोगों में से हमको भी बना। या अल्लाह 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 ताला से माँगो इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला देने वाला है, वो रहमत वाला है, यानी वो गनी है। वो कुन फयाकुन से अल्लाह ताला जो कुछ भी कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह अगर जिसको देता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर अल्लाह जिसको रोकता है, उसको कोई भी दे नहीं सकता। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का अपने बंदों पर कितनी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे-ऐसे आयतों से ऐसे-ऐसे बातें हमको पता करता है। पता चली ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों से हमको इतने वाज़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए, अल्लाह से कैसा माँगना, कैसा करना, कैसा अल्लाह को राज़ी कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बातें सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, ये कुरान और हदीस के ज़रिए से अल्लाह ताला के इज़्ज़त से ये सभी हमको पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। और एक हदीस क्या है, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क सहरी खाना, यानी सहरी खाना यही फ़र्क था उनके हमारे रोज़ों के दरमियान। इस हदीस का फ़ायदा क्या है? गोया सहरी खाना उम्मत मुस्लिमा की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत में से है। क्या है? ये इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत में से, तो इम्तियाज़ी के तो मुमताज़ यानी अच्छा तरीक़ा है, और ख़ुसूसियत के तो ऐसा ख़ुसूसियत यानी बेहतरीन काम ये, जिससे अल्लाह ने इस उम्मत को नवाज़ा है। अल्लाह किसे हमारे लिए यानी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाज़ा है ये मौका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन हम बस ये एक टाइम का खाना नहीं खाती, इतना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 टाइम हमें खा लेती। बस ये एक टाइम का खाने से और पानी वगैरह नहीं पीने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रोज़े के लिए कितना खुशखबरी दिया। यानी जो नेकी करता है उसका इतना-इतना नेकी रोज़े की नेकी सिर्फ़ रोज़े का सवाब सिर्फ़ मैं दूँगा, वही जिसका रोज़ा जैसा है उसका जज़ा मैं दूँगा। कर अल्लाह ताला ये बात भी फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमें पता चलता है कि हमारा रोज़ा कैसा होना चाहिए, हमारा ज़िक्र कैसा होना चाहिए, हमारी नमाज़ कैसी होना चाहिए, हमें अल्लाह के दीदार, हमारे नमाज़ का, हमारे रोज़े का सवाब कैसा लेना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जैसे भी हमें करते ही उसके बराबर हमारा अमल मिलेगा और उसके बराबर हमारा जज़ा मिलेगा। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस से ये भी बात पता चला कि जब भी तुम्हें नमाज़ पढ़ो, यानी ये हदीस जिब्राइल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सही बुखारी की हदीस है। उसमें क्या है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाए, अगरचे अल्लाह को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान जब भी तुम्हें नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को देखने की कोशिश करो। उतना भी नहीं समझो, अल्लाह तुम्हाको देख रहा है।
वो इतना तो समझो कि तो हमारे आँखों में इतना पावर नहीं, इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं और इतना हमारे में जज़्बा नहीं कि हमें अल्लाह को देख सके। हमें ये नहीं ये समझना कि ज़रूर ये समझना कि अल्लाह हमारे को देख रहा है। अल्लाह हमाको देख रहा है, वो 7 आसमान के ऊपर है, फिर भी वो हर चीज़ पर कादिर है। हर चीज़ पर इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ का इल्म उसके पास है। इसीलिए हमें जो भी करते हैं, जो भी नेक अमाल करते हैं, रोज़ा हो, नियत हो, जो भी एक को हँसकर बात करना भी वो भी सदका है। एक जो भी एक परेशान की हालत में यानी जो भी ऐसा एक को सहारा करना यानी बात से भी उसके हिम्मत बढ़ाना ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन अल्लाह दिया तो ये है कि मोमिन को एक दूसरे का अपना बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ही खैर और भलाई है और ईमान का भी यही तकाजा है कि एक एक बात ये भी है कि एक भूखे को खाना खिलाने से अल्लाह ताला जन्नत की बशरत देता है यानी जो भी भूखे को खाना खिलाने वाले यानी ऐसा सकीब बनना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हर एक की मुश्किल में साथ देना यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया इतना भी बड़ी नहीं कि हम दुनिया में 1000 साल 2000 साल हमें रह सकते ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये मुख्तसर दुनिया है ये दुनिया फानी है हमें एक दिन इसे छोड़कर जाना है इस पर दिल लगा के नहीं रहना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जितने दिन हमारे दुनिया में रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह उतने दिन हम रहेंगे उससे ज्यादा हम नहीं रह सकेंगे इसीलिए हमें जो भी करते ही अल्लाह ताला हमें क्या समझना हमारी बात आगे नस्ल याद करना अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हमें दो बार हमें पता चली क्यों एक बार ये पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराज के मौके पर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के पास बैठकर तेरी उम्मत को मेरे सलाम कहना ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी उम्मत को मेरा सलाम करना ये भी एक बात बोले कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम और पहले भी एक बार क्या करे या रब मैं दुनिया से मैं रुखसत होगा तो भी मेरा जिक्र आगे मेरी नस्ल में रख इसी तरह हमें क्या करती अतहत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दरूद भेजती और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी दरूद भेजती ऐसा हमें क्या करना हमें हमें जितने दिन भी हमें रहे दुनिया में जो कुछ भी हमें करे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खैर के साथ हम लोगों याद करना अल्हम्दुलिल्लाह यही है इस्लाम हमारा आसान इस्लाम है इसे अपनाए तो आसान है और इसमें ज्यादा से ज्यादा ये करे तो ज्यादा है इसीलिए एक दूसरे पर जुल्म मत करो एक दूसरे पर सितम मत डालो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो भी दुनिया में जो भी करते हैं ये यहीं तक मिट नहीं जाता इंशाअल्लाह जो भी बोते हैं दुनिया में कयामत के दिन वो काटना है हमें जो भी दुनिया में बोते हैं यानी जो भी बीज हमें डालती हैं दुनिया में वो जाकर क़यामत के दिन हमें काटना होगा। अब जो भी हमारा किताब लिखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो क़यामत के दिन जाकर हमें वो किताब लेना होगा। जब ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब कई को ऐसी हुई ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असाहा को बिल्कुल सूरह अल कहफ में थोड़ी आयत है वो मैं थोड़ा से मैं पढ़ी ज्यादा नहीं पढ़ी ऐसा अफसोस नहीं होना कि या अल्लाह क्यों मेरी किताब ऐसी हुई क्यों मेरा बात नेकी छोटी भी नहीं छोड़ा और बड़ी भी बख्ती नहीं छोड़ी और छोटा सा छोटा गुनाह भी नहीं छोड़े ऐसा नहीं होना अल्हम्दुलिल्लाह हमें हम अपनी किताब खुशी से लेना और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमें क़यामत के दिन हमारी किताब हमारे आसान में सीधे हाथ में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह हमें और जन्नत वालों में मिला दे अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे जगह दे वो उम्मीद रखना बस दुनिया जो भी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह चलती बस हमें दुनिया पर दिल नहीं लगाना अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत पर दिल लगाना यही है हमारा ये दुनिया एक ऐसी चीज है कि इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती क्योंकि दुनिया में मशगूल कर लेती ये दुनिया में जो कुछ भी है ये कुछ भी साथ नहीं आता बस अपना कफन भी शायद अपना साथ नहीं आता अगर से कि किधर भी डूब कर ऐसा गिर कर ऐसा क्या होकर मरे तो उसे कफन भी साथ नहीं आता क्यों ये दुनिया को हमें दिल लगा के बैठना इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह के आयतें पढ़ने से वाज़ेह होता है कि दुनिया क्या चीज है और आखिरत क्या चीज है मैं दुनिया में जो भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी फायदा उठाना अगर
जिसके पास भी पैसा है, सोना है या जो कुछ भी है, ये मैं नहीं बोली कि ये बेकार चीज़ है, नहीं, वो चीज़ अच्छा है, फिर वो चीज़ का इस्तेमाल करे तो अच्छा है, अगर चाहे उसे बेफुज़ूल के कामों में लगे तो वो गुनाह है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दिया तो नेमत को अच्छे से अच्छे कामों में लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।